Hello everyone, myself Muskan Sharma and today I'm presenting topic coronavirus in front of you. Hope you like the video. Do watch it till the end. You will get so many information about it till the end. Okay. So let's start with it. On the first note, we have the contents of the video, what we are going to cover it in this video. So we are going to cover overview of the coronavirus, structure of coronavirus कि कैसा structure है उसका, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे हमारे सेल्स को वो इन्फेक्ट करता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है कोरोना वायरस के एंड कैसे हम उसको डायग्नोज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है उसका और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये सब कंटेंट कवर करेंगे. Let's start with it. First we have coronavirus overview. Basically coronaviruses are a group of related RNA viruses. That means they are what? RNA viruses. They are what? RNA viruses. Okay, single strand RNA virus. To be typical, they are what? Single strand RNA virus. Okay, they cause particularly disease in mammals and birds. Okay, in humans these virus cause respiratory tract infection. They will cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal. Okay, it doesn't mean अगर आपको कोरोना हो गया है तो lethal ही होगा, नहीं होता. माइल्ड सिम्टम्स भी आ सकते हैं और लीथल सिम्टम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, माइल्ड इलनेसेस में हमारे पास आ गया जैसे कॉमन कोल्ड, जो मेजॉरिटी ऑफ और कौन करता है, राइनो वायरसेस. वो आपको पता ही है, कॉमन कोल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न राइनो वायरस ही होता है. ठीक है, और अगर हम लीथल वेराइटीज़ की बात करें तो जैसे सार्स हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओके, मर्स हो गया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड कोविड-19 जो कि करंट हमारा पेंडेमिक चल ही रहा है. तो ये सारी हमारी लीथल वेराइटीज़ होगी. और कोरोना वायरसेस हमारी फैमिली कौन सी है, उनकी किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो कोरोना विरिडे. कौन सी फैमिली? कोरोना विरिडे. ओके, ये फैमिली है कोरोना वायरसेस की. ओके, so in today's video we'll mainly focus on COVID-19, which is, you all know, that current global pandemic. Okay, so yeah, the virus was initially referred to as 2019 nCoV. उसको initially हम क्या बोलते थे? 2019 nCoV. N means novel, CO means corona and V means virus. तो 2019 ईयर से स्टार्ट हुआ था. दैट इज वाई इट इज नोन एज, इट वॉज नोन एज इनिशियली 2019 नोवल कोरोना वायरस एंड वॉज इनफॉर्मली उसको मतलब हम एक क्लेम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? वुहान कोरोना वायरस. वाई वी कॉल इट वुहान कोरोना वायरस? बिकॉज it was originated from Wuhan. Okay, so yeah, Wuhan coronavirus. So basically WHO named the disease COVID-19. You all know that currently we are calling it as COVID-19. Okay, so basically it does not why we call it a COVID-19? COVID-19 simply means what? That means CO means corona, okay, VI means virus, D refers to disease, okay, and 2019 is the year of its origination. Okay, so why we call it a COVID-19? Because it does not refer to a particular geographical location. It is not fixed. As you know, it is a pandemic. It can spread all over the world. Okay, and animal, it is not particular to animal, like it is causing infection to camel only, it will cause infection to cattle only, nothing. It can infect anyone. Okay, a person, it is not typical to any person, like will get 20 to 25 years of individuals are going to have it. No. Okay, and group of people, it is not limited to group of people like old people or infants or pregnant women. कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है. इट कैन इफेक्ट एनी वन. ओके, सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक इट प्रोनाउंसेबल एंड रिलेटेड टू द डिसीज. वो चाहते थे कि कुछ ऐसा नेम दें इसको ताकि जो सबसे प्रोनाउंसेबल भी हो, ईजी हो, क्योंकि इतना लंबा कौन बोले कोरोना वायरस डिसीज 2019, इतना कोई नहीं बोल सकता ना. हम बोल सकते सार्स कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस. तो हमें प्रोनाउंसेबल बनाना था उस चीज़ को. रिलेटेड टू डिसीज, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू डिसीज. यू कैन सी इन द नेम ऑल्सो. ओके, सो या, द वायरस वॉज ऑफिशियली नेम्ड एज SARS-CoV-2. उसको हमने SARS-CoV-2 भी नेम दिया था, CoV-2. ओके, वाई वी गिवन है SARS-CoV-2 बेसिकली, या फिर हम इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बनता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके,
and coronavirus 2. Why we call it this? Because it's genetically very much similar to SARS coronavirus. In 2002 there was the epidemic or there was the outbreak of SARS coronavirus. Okay, so basically genetically बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये जो कोविड-19 का वायरस है वो सार्स के साथ. दैट इज़ वाई हमने इसको पहले ऑफिशियली नेम दिया था क्या, सार्स कोरोना वायरस 2. ओके, बात करें सार्स की तो 2002 में क्या हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाज अ कोरोना वायरस दैट होप्ड ओवर फ्रॉम द बैट्स टू कैट्स एंड देन ओवर टू ह्यूमंस. बेसिकली बैट्स, कैट्स इन पर्टिकुलर था, वैसे सीवेट्स था. सीवेट्स हमारे भी एक क्लास है, कैट्स के अंडर ही आता है. ठीक है, तो सीवेट्स ने फिर इन्फेक्ट किया था ह्यूमंस को. ओके, सो बैट्स में आया था, फिर सिवेट्स में, एंड देन सिवेट बना था इसका इंटरमीडिएट होस्ट. ओके, एंड इसका मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था. इसका मोर्टालिटी रेट था 50%. मतलब जो अगर फॉर सपोज 100% पीपल को होता है उसमें से 50% मोर्टालिटी रेट था इसका. तो सोचो कितना ज़्यादा हाई मोर्टालिटी रेट था. चाइना में ही ओरिजिनेट हुआ था ये भी हमारा. ओके, तो ये हमारा 2002 टू 2004 के आसपास ये चला था सार्स कोरोना वायरस. ओके, अब बात करें इसके सेकेंड लीथल फॉर्म की जो कि था मर्स. मर्स है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका आउटब्रेक 2012 में हुआ था. ठीक है, क्या था, वही सेम बैट से ओरिजिनेट हुआ था, देन टू कैमल्स एंड देन टू ह्यूमंस. अब देखो एक चीज़ है, मिडल ईस्ट इसका नाम दिया गया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. क्यों दिया मिडल ईस्ट में? लाइक आप कंसीडर करो ये ओरिजिनेट हुआ था सऊदी अरेबिया से बेसिकली. ओके, वहाँ पे डेजर्टेड एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे कैमल ज़्यादा होते हैं. तो पहले क्या था, बैट से स्टार्ट हुआ, बैट से कैमल्स को इन्फेक्ट किया, कैमल्स में ही क्वाइट सम टाइम ये घूमता रहा, उन्हीं के बीच में सर्कुलेट होता रहा, इन्फेक्ट होते रहे, फिर जाके ये कहाँ कैमल्स ने किनको इन्फेक्ट किया, ह्यूमन्स को इन्फेक्ट किया. अगर इसकी मोर्टालिटी रेट की बात करें तो मोर्टालिटी रेट इसका अराउंड 30% था. 30% इसका मर्स का मोर्टालिटी रेट था. तो ये दो हमारे ऐसे एपिडेमिक थे जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से ही हुए थे. एंड थर्ड वन तो करंटली चल ही रहा है, कोविड-19. ओके, सो कोविड-19 मोस्ट लाइकली ऑल्सो स्टार्टेड विद बैट्स से ही स्टार्ट हुआ, चाइना से, वुहान से ही ओरिजिनेट हुआ, है ना. तो बट दिस टाइम द इंटरमीडिएट होस्ट वॉज प्रोबेबली अ पेंगोलिन. कौन था? पेंगोलिन. अब पेंगोलिन हमारा एक स्पीशीज है. ओके, क्या है, इसके बॉडी सरफेस पे स्केल्स होते हैं. क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि काफ़ी बीमारियों को हील करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो या इसका पहला होस्ट कौन बना? बैट से इंटरमीडिएट होस्ट कौन बना? पेंगोलिन. अब ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन एंटर हो गई है जो कि ये फैला रहा है. ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा पेंगोलिन इसका इंटरमीडिएट होस्ट है? बेसिकली साइंटिस्ट ने जब पेंगोलिन में देखा तो उनको 96% सिमिलर जेनेटिक मैच मिला कोविड-19 वायरस का. ओके, सो दैट इज वाई इसका इंटरमीडिएट होस्ट उन्होंने बोला कि प्रोबेबली पेंगोलिन हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो कोरोना वायरस आर सिंगल स्ट्रैंड, पीछे बता चुकी हूँ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस मान लिया. पॉजिटिव सेंस चार्ज की बात हो रही है? नहीं, कुछ चार्ज की बात नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव यहाँ पे इस सेंस में लिया है कि एक तो ये बहुत फास्ट ग्रो करता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट ये ग्रो करता है. सेकंड, ये अपनी कॉपीज़ बहुत क्विकली बना लेता है, बहुत जल्दी अपने आप की मशीनरी यूज़ करके बहुत जल्दी ये कॉपीज़ बना लेता है. और मॉडिफाई बहुत ज़्यादा होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल साइज का. क्या है, जब चाइना में वायरस ओरिजिनेट हुआ था या स्टार्ट हुआ था वहाँ से फैलना, तो क्या हुआ था, अब का जो देखो और इंडिया में जो वायरस अब के टाइम पे स्प्रेड हुआ है, अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखो तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा म्यूटेट किया है, मॉडिफाई किया, अपने आप में चेंजेस ला रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड अ वैक्सीन अगेंस्ट इट. ओके, सो या
इसीलिए हम इसको पॉजिटिव सेंस बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ अपने बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है, बहुत जल्दी मॉडिफाई हो सकता है। एक और पॉइंट है, जो हमारे कोरोना वायरसेस होते हैं वो एनवेलप्ड वायरस होते हैं। कौन से वायरस होते हैं? एनवेलप्ड, उनका एनवेलप होता है, उसके अंदर उनका जीनोम होता है। दैट इज़ अनदर रीज़न टू मेक इट हार्ड टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर इट, ओके, बिकॉज इट्स जीनोम इज़ नॉट एक्सपोज टू अस, ओके। और जो अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो इसके जो सरफेस है, एनवेलप वाला सरफेस है, उसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स है, बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उनकी स्पाइक्स हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस लुक्स लाइक अ बिट ऑफ क्राउन अंडर माइक्रोस्कोप, जो उसको क्राउन की अपीयरेंस देते हैं। आपको पता है लैटिन वर्ड में क्राउन का मतलब देखें तो वो होता है कोरोना, हेंस द नेम इज कोरोना, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर की बात, इसका जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको दिख रहा होगा, ये आरएनए, ये रहा इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसके सरफेस पे ग्रीन कलर के जो आप देख रहे हो ये एम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो यहाँ पे, इसको हीमोग्लूटिनिन एस्ट्रेज डाइमर बोलते हैं। ये रेड कलर का जो है सराउंडिंग वो एनवेलप होता है, और ई प्रोटीन ये येलो कलर का, दैट मीन्स इसके ऊपर 3-4 तरह के प्रोटीन्स हैं इसके सरफेस पे, जो कि इसको पॉजिटिव सेंस में बहुत फास्ट ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर किसका? कोरोना वायरस का, ओके। लेट्स मूव टू इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे ये और सेल्स को हमारी बॉडी के इन्फेक्ट करता है और अंदर जाके करता गया, ठीक है। तो स्टार्ट सबसे पहले कैसे होता है? कोरोना वायरस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी वाया नोज, माउथ एंड रीचेस टू द सेल्स ऑफ द लंग्स। सी बेसिकली व्हाट हैपन्स, किसी ने खांसा, किसी ने छींका, ठीक है, वो वायरस या ड्रॉपलेट्स जो वायरस को कंटेन करती है वो हमारे अंदर गई, हमने उनको इनहेल किया वाया नोज, वाया माउथ, कुछ भी, ठीक है। वो हमारे ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचे? लंग पे पहुंचे। आपको पता है रेस्पिरेटरी डिसीज है तो किसको इन्फेक्ट करेगी? ऑब्वियसली हमारे लंग को इफेक्ट करेगी, ठीक है। आवर सेल्स हैज ACE2 receptors on its surface where virus binds with this receptor. See basically ये हमारा सेल है, consider this our cell and consider this is corona virus, okay. So what happens, हमारे सरफेस पे ACE2 रिसेप्टर्स है। ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है जनरली, वैसे ये चीज़ गलत है कि इसको पहले ये जब एनिमल्स में पाया जाता था, ठीक है, तब ये हमारी बॉडी में अगर एंटर भी हो जाता था वो केपेबल नहीं होता था हमारे सेल्स के साथ बाइंड करने में। बट इसने अपने स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी है कि अब ये एबल है हमारे सेल के साथ बाइंड होने में। तो ये क्या करता है, कोरोना वायरस हमारे सेल के साथ या ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो अंदर एंटर होगा सेल में। तो जैसे कि ये फॉर सपोज दिस इज सेल, अब यहाँ पे एक वेसिकल बना, यहाँ पे हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोरोना वायरस अटैच है। तो ये क्या, इनसाइड अ वेसिकल ये हमारा सेल में एंटर हो गया एंटर, ठीक है। वायरस एंटर्स इन द सेल इनसाइड अ वेसिकल, हो गया जी, एंटर हो गया। The lysosome present in the cell, you know that there is a organelle called lysosome, basic है, ठीक है। इसमें हमारे एंजाइम्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ आवर सेल, ठीक है। तो लाइजोसोम है हमारे यहाँ प्रेजेंट, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब क्या करेंगे, उनका काम है इस पे अटैक करेंगे, इस वेसिकल पे अटैक करेंगे, ओके। द लाइजोसोम प्रेजेंट इन द सेल बाइंड्स विद द वेसिकल एंड द एंजाइम एंटर्स द वेसिकल। अब क्या करेगा, एक वो वे सा बना देगा बाइंड होके, और जो सारे एंजाइम्स हैं वो ब्रेक होके इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हमारे उसके एंजाइम्स थे वो हमारे उस वेसिकल में, लाइजोसोम के एंजाइम थे वो हमारे उस वेसिकल में चले गए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, द एंजाइम ऑल्सो डिजोल्व द आउटर एनवेलप ऑफ द वायरस एंड RNA ऑफ द वायरस रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्या होगा, ये हमारा सेल है करेंटली, दिस इज आवर सेल, ओके। अब क्या, लाइजोसोम यहाँ पे बाइंड है, ये वेसिकल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंजाइम सारे इसने यहाँ पे भेज दिए थे, ठीक है। अब जो कोरोना वायरस है इसका जो एनवेलप है
वो भी लाइजोसोम के जो एंजाइम है वो क्या कर देंगे, लाइजोसोम के जो एंजाइम है वो इसको डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बाहर एक्सपोज हो जाएगा, हो गया एक्सपोज। अब क्या होगा, आरएनए वायरस यूजेस आवर राइबोसोम टू मेक वायरल प्रोटीन एंड यूज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू मेक आरएनए कॉपीज। ओके, सो व्हाट हैपन हियर, अब ये वेसिकल भी ब्रेक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वेसिकल ब्रेक होने के बाद जो आरएनए है वो इसका हमारे सेल में आ गया, हमारे साइटोप्लाज्म में वो आ गया, ये रह गया हमारा सेल, लाइजोसोम गया खत्म, एंजाइम्स उसके लीक आउट हो गए, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब उसका जो वायरस का वो वेसिकल भी हमारा ब्रेक हो गया। अब जो वायरस का आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, जो आरएनए वायरस है वो हमारे राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री है हमारी, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को यूज करके अपने प्रोटीन बना लेगा। वो क्या बना लेगा, अपने प्रोटीन्स बना लेगा। ओके, अपने उसने प्रोटीन्स बनाए किसकी हेल्प से, एंड यूज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये उसने यूज किया, ओके, टू मेक आरएनए कॉपीज। और क्या करेगा, इस एंजाइम की हेल्प से वो और आरएनए की कॉपीज बना लेगा अंदर, ओके। एंड ऑल्सो यूज, और वहां पे क्या करेगा, प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेगा। किस एंजाइम का, प्रोटीएज एंजाइम का यूज करके जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको किल कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, जब वो साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसने अपने हमारे राइबोसोम यूज करके उसने प्रोटीन्स बनाने चालू कर दिए, ठीक है। फिर उसने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके आरएनए की कॉपीज बना ली, ओके। फिर उसने प्रोटीज एंजाइम का यूज किया ताकि वो हमारे प्रोटीन को किल कर सके। अब उसने क्या क्या बना लिया, उसने आरएनए बना लिया, उसने प्रोटीन्स बना लिए बड़े सारे। अब आरएनए प्रोटीन्स बनाने के बाद क्या करेगा, इट विल मेक एनवेलप विद प्रोटीन। अब क्या, प्रोटीन को यूज करके वो क्या करेगा, एनवेलप बनाएगा। सो एज इट्स स्ट्रक्चर, याद है कि क्या होता था, इसके सरफेस पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, तो इन सारे प्रोटीन्स को वो यूज करके क्या करेगा, एनवेलप बना लेगा। और उस एनवेलप के अंदर वो जो आरएनए की कॉपीज बनाई हैं उनको घुसा देगा। घुसाने के बाद न्यू वायरस तैयार हो गया जी हमारा, ठीक है। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी कॉपीज बनाता है, फिर वो सेल टू सेल बर्स्ट हो जाते हैं, फिर वो आगे और सेल्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं, फिर वो आगे और सेल्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं। तो ये होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, एंड हेंस हमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। आफ्टर मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन, जब आरएनए प्रोटीन बना लिया, एनवेलप बनाएगा प्रोटीन के साथ और फिर आरएनए को उसमें इंसर्ट कर देगा, मेकिंग मोर वायरस कॉपीज, ओके। आफ्टर मैनी कॉपी वायरस आर रेडी, दे विल बर्स्ट द सेल, इवेंचुअली क्या करेंगे, सेल को फाड़ के एंड रिलीज, निकल जाएंगे, ठीक है। एंड अगेन इन्फेक्ट मैनी सेल्स, और जाके और सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे, और हेंस साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे हमको, ठीक है। तो ये थी हमारे कोरोना वायरस की पैथोफिजियोलॉजी, ओके। सो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कॉमन है सबको, अभी तक तो सबने सुन लिया होगा, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। फीवर 96% केसेस में फीवर होता है, ठीक है। ड्राई कफ, सॉर थ्रोट, एनोस्मिया होता है लॉस ऑफ स्मेल, जब हमें स्मेल आनी बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं एनोस्मिया, ठीक है। टायर्डनेस, थकान रहती है बॉडी में, एक्स एंड पेन, दर्दें रहती हैं, ठीक है। डायरिया, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, ठीक है। सम मोर साइन एंड सिम्टम्स में बात करें, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, हमारी कंजक्टिवा लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, हेडेक हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट, खाने का कुछ टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती, ठीक है। रैश हो जाता है स्किन पे, डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है। डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, चेस्ट पेन, प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। तो ये सारे हमारे कुछ और साइन एंड सिम्टम्स है, ये हमारे इतने कॉमन नहीं है, कॉमन हमारे ये साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है, ओके। अब बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे, सबको पता है कैसे फैलता है, कंटैक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी पर्सन को कोरोना वायरस है, आप उसके कंटैक्ट में हो, डायरेक्टली उसके कंटैक्ट में हो तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो। इनडायरेक्ट वे में जैसे कि कोरोना वायरस का पेशेंट है, उसने कोई डोर नोब को टच करा, वो डोर नोब को टच करने के बाद वो चला गया और आपको पता नहीं, आपने वो डोर नोब को टच करा और वही हाथ अपने फेस पे लगा लिया और वो हेंस वहाँ से कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो ये था हमारा कंटैक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात करें, खांसते हैं, छींकते हैं, ड्रॉपलेट्स उड़ती हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है या हम कह सकते हैं अगर आपने मास्क वगैरह नहीं लगाया और आप उसके बिल्कुल पास खड़े हो तब हो जाता है, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ओके, एयरबोर्न ट्रांसमिशन की, एयरबोर्न ट्रांसमिशन अभी इतना पॉपुलर नहीं है। बेसिकली साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकती है कोरोना वायरस की, बेसिकली जहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं और जहाँ पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वहाँ केसेस में एयरबोर्न ट्रांसमिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उन केसेस में जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी देर तक हवा में रहता है। ओके, वैसे ये हैवी पार्टिकल है, ये ज़्यादा देर हवा में नहीं रुक सकता, ये सेटल होने की करता है। ठीक है, नाउ कम डायग्नोसिस, कैसे हम पता लगाएंगे? ट्रैवल हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पता ही है एयरपोर्ट पे लोग ज़्यादा ट्रैवल कर, और एयरपोर्ट पे लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, जगह जगह से आए होते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं, ठीक है, किन चीज़ों को टच किया। तो ट्रैवल हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हम चेक करें कि पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं है। ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ल्यूकोपीनिया देखा जाता है पेशेंट्स में जो कोरोना वायरस के पेशेंट है, तो ये भी एक फैक्टर है। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं इवन हम। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पता ही है हम क्या करते हैं, हमें इससे स्पेसिफाई हो जाता है जीनोम क्या है। जीनोम को स्पेसिफाई करने के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फिर एक रैपिड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आईजीएम आईजीजी कॉम्बो टेस्ट। बेसिकली इसमें हम आईजीएम एंटीबॉडीज और आईजीजी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं बॉडीज में। रैपिड टेस्ट है अब तक का, 15 मिनट में ये टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब लेते हैं, तो उनसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेस्ट थे। अब बात करें ट्रीटमेंट की, आपको भी पता है कोई अभी तक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं आया है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 टिल नाउ। वैक्सीन्स की भी ट्रायल्स बहुत सारी चल रही हैं, तो इसलिए हम अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, एंटीवायरल और रेट्रोवायरल मेडिकेशंस देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन होगी नॉर्मल लेवल पे जो कॉमन है, रेमडेसिविर, ये सारी हमारे पास कुछ एंटीवायरल और रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो कि इफेक्टिव है इसको कंट्रोल करने में। ओके, ब्रीदिंग सपोर्ट दे सकते हैं सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली बंदे की जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन की वो कम होती जाती है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं लंग्स की स्वेलिंग को कम करने के लिए। ओके, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट को। ओके, now move on to the prevention. For prevention you just have to remember Wuhan, जहाँ से ये शुरू हुआ था, बस आपको वही याद रखना है। और भी काफ़ी हैं वो आप ऐड कर सकते हो, बट ऐसे प्रिवेंशन अगर याद रखनी है फ्रीक्वेंटली तो Wuhan is a good mnemonic to learn it. Okay, so wash hands frequently. From W we have जल्दी जल्दी हाथ धो, जितना हो सके कुछ भी करो हाथ धो, कुछ भी करो हाथ धो, तो wash hands frequently. Now from U, use mask properly. फ्रॉम एच वी हैव योर टेम्परेचर चेक रेगुलरली फॉर फीवर, देखते रहो कि फीवर तो नहीं आ रहा, तो अपना टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली चेक करते रहो। ठीक है, ए अवॉइड लार्ज क्राउड एंड स्टे होम, तो ज़्यादा रश में मत जाओ, पता नहीं कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है, तो घर ही रहो। ठीक है, फ्रॉम एन वी हैव नेवर टच योर फेस विद अनक्लीन हैंड्स, गंदे हाथों से अपना मुंह कभी टच मत करो, क्योंकि पता नहीं आपने कौन से सरफेस को टच करा और वहाँ पे क्या पता कोरोना वायरस वाले पेशेंट ने टच किया हो, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वर्ड वुहान। ओके, नाउ रिकमेंडेशंस में डोंट्स और डूज में क्या आ जाता है? डोंट्स में हमारे पास आता है डोंट हैव अ क्लोज कंटैक्ट विद एनीवन इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग कफ और फीवर। अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर है और कफ है तो लोगों से क्लोज कंटैक्ट, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लो तो बेटर है आजकल के टाइम में। ओके, डोंट स्पिट इन पब्लिक, पब्लिक में कभी स्पिट मत करो। ठीक है, डोंट ट्रेवल एनीवेयर, स्टे होम, जहाँ तक हो सके ट्रैवल अवॉइड करो। ओके, फॉर डूज में आ जाता है गुड पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखो। रेस्पिरेटरी एटिकेट, बेसिक रेस्पिरेटरी एटिकेट होता है, हैंडकरचीफ का यूज़ करो। ओके, और माउथ कवर करो फ्रॉम योर एल्बो व्हेन यू स्नीज और कफ। ओके, सी अ डॉक्टर इफ़ यू फील अनवेल, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, क्लीन योर हैंड्स विद एल्कोहल, अगर आपको लग रहा है विजिबली आपके हैंड डर्टी नहीं है तो आप एल्कोहल बेस्ड हैंड रब या सैनिटाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सोप एंड वाटर इज बेस्ट फॉर हैंड वॉश। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड and hope you like the video. Thank you.